Okay, so good afternoon, students. This is our lab class of the subject manufacturing process, and today I am going to discuss with you the experiment number 6. The aim of the experiment is to study various types of welding processes. So, can you name the various types of welding processes? And before that, can anyone define or describe what is a welding process? बता सकता है कोई आप में से? जैसे स्क्रीन पे आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना? So basically, welding process is a metallurgical fusion process where two or more than two parts to be joined are heated by some source of heat. Localized melting of the parts to be joined takes place. The molten metal of the two parts fuses together and solidification takes place. In this way, joining of the two or more than two metallic parts takes place. Here written that welding is a process for joining two similar or dissimilar metals by fusion. We can join similar or dissimilar metals also. It joins metals alloy with or without the application of pressure and with or without the application of filler material. Application of heat is necessary in all kinds of fusion welding processes, but in some cases or in some welding processes, pressure is applied and in some cases filler material is also used. The fusion of metal takes place by means of heat. The heat may be generated either from combustion of gases in the case of gas welding, by electric arc in case of arc welding, and by resistive heating in case of resistance welding, and by chemical reaction in case of thermit welding. तो आप लोगों ने मैं एक्चुअली आप ये इसकी थ्योरी बहुत सारी आपको पढ़ा चुका हूँ. सो हियर आई वुड लाइक टू discuss in brief the various types of processes of welding. Consider this figure. This is basically used to describe the terminology of the welding process. Consider this figure A. Here two parts are joined in butt position, that's why it is a butt weld. Whereas in this case it is a flat joint. Two workpieces are joined in flat position. Okay. So this is the fusion zone where these two parts are to be joined are melted by the application of heat. These two parts to be joined are known as base metal. इसको भी अपन बेस मेटल बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं. सिमिलरली इस केस में ये दोनों पीस यहाँ पे क्या है, बेस मेटल है. Okay, this is known as this distance. Actually, you can see the edge preparation also here. So whenever thickness of metallic pieces to be joined is more, in that case some edge preparation is needed so that the electrode in case of resistance, in case of electric arc welding, a flame can move in this position in order to localize melt this portion of the base metal. Where these two parts are close to each other, that portion is known as root. So you can see root face or root opening in this figure. And when welding is completed, amount of metal is deposited on these two workpieces, and top surface is known as weld face. So this is the case of butt welding or joint prepared by butt weld, and this is a flat weld where this portion is known as weld face. This is the root. This complete is the fusion zone where by application of heat the two parts to be joined are melted, locally melted. Now you can see the various types of welding joints written here: butt joint, corner joint, lap joint, edge joint. So can you remember what is a butt joint? As I told you just before, these two parts are in contact with each other. They are in matching position. That's why this kind of joint is known as butt joint. It is used to join two different parts aligned in the same plane. Okay. Corner or T-joint, these joints are used to join two members located at right angles. ठीक है ना? Lap joint or overlap joint,
These joints are used to join more than one metallic pieces in overlap positions. Edge joint, it is the joint used to join the edges of two or more members. मतलब यदि ये दोनों मेंबर यदि मैं यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में ले आऊँ तो जब मैं ऊपर से यहाँ से वेल्ड करता हूँ तो ये एज ज्वाइंट बनेगा. So these are some of the joint which are made by welding. You can see the figure also. So this is butt joint where these two parts are in butt position. This is lap joint where one workpiece or one work part is overlapping the other part. This is corner joint. This is fillet or T joint, and this is edge joint. ठीक है ना. ये कॉर्नर जॉइंट है, ये फिलेट या टी जॉइंट है, और ये वाला एज जॉइंट है. So these are some of the joint which can be made, or that means workpiece can be welded in these positions. तो यहाँ पे 4-5 पोजीशंस अपन को दिखाई गई हैं, वर्कपीस को इन पोजीशन में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, और ये इनके ज्वाइंट कहलाते हैं, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, लाइक दैट. Now positions for joining these kind of workpiece, that means in order to make these kind of joints, there are 4 types of positions. One is flat or downhand welding position. यदि ये पार्ट नीचे रखा है, बट जॉइंट बना रहा है, यदि हम यहाँ से ऊपर से इलेक्ट्रोड लेते हैं और फिर इसकी वेल्डिंग करते हैं तो ये फ्लैट और डाउन हैंड वेल्डिंग पोजीशन होती है. हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज दिस, ये कुछ भी हो सकते हैं इस टाइप की, जब वर्कपीस थोड़ी सी कंसिडरेबल हाइट पे है और हम इस डायरेक्शन में से इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं. देन कम्स द वर्टिकल. तो वर्टिकली अप एंड डाउन जो पोजीशन होती है वो वर्टिकल पोजीशन कहलाती है. ओवरहेड पोजीशन कौन सी होती है? कंसीडर दिस केस, यदि मैं इसी वर्कपीस को इधर अंदर से जाके वेल्ड करने लग जाऊं, मतलब मेरा इलेक्ट्रोड इस तरफ होगा, तो जब यहाँ से आग जनरेट करेगा तो उस प्रकार की जो पोजीशन होगी, दिस पोजीशन इज नोन एज ओवर हेड पोजीशन. सो देयर आर जस्ट 4 पोजीशंस, ठीक है, जिसमें वर्कपीस आपका लोकेटेड होता है, एंड वर्कपीस इज टू बी वेल्डेड इन दोज पोजीशन. फ्लैट और डाउन हैंड वेल्डिंग पोजीशन, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन, vertical position, and overhead position. And you know the name of various types of joints. तो यदि आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशंस. सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? Yes, सर sir. हेड जॉइंट थोड़ा सा बता दीजिए. कौन सा बेटा? हेड जॉइंट सर. डी. डी ओवरहेड. एज जॉइंट, एज जॉइंट. यस सर, यस सर, यस सर. देखो इसमें क्या है, ये वर्कपीस जिनको हम ज्वाइन कर रहे हो वर्टिकल पोजीशन में, इसका ये पोर्शन भी वर्टिकल पोजीशन में और ये वाला तो वर्टिकल पोजीशन में है ही. तो इस केस में जब हम इस ज्वाइनिंग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एज ज्वाइंट. ठीक है, यदि मैं इसको नीचे से वेल्डिंग करने लग जाऊं तो हो जाएगी ओवरहेड पोजीशन. ठीक है ना, और ये पोजीशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है. ठीक है, तो ऊपर से यदि मैं दोनों वर्कपीस को खड़ा कर दिया और उनको एज वाइज ज्वाइंट कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री पे है, ये एज ज्वाइंट नहीं है, ये कॉर्नर ज्वाइंट है. ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है? एज ज्वाइंट है. और कोई डाउट आप लोगों को यहाँ तक? व्हाट इज वेल्डिंग, इसकी वेल्डिंग की टर्मिनोलॉजी, वेल्डिंग के ज्वाइंट, ठीक है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशंस. इनमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं. आगे चलते हैं अपन. ये तो वही पोजीशन दिखाई हुई है सेम. ये एक जॉइंट है जो कि बट पोजीशन वाला है. इसमें फ्लैट है, डाउन हैंड वेल्डिंग पोजीशन है जब ये दोनों सीट नीचे ज़मीन पर रखी हुई हैं. इसमें वर्टिकल अप हैं वर्क पीसेस, लेकिन उनको हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग की जा रही है. इसमें वर्टिकल अप है लेकिन वर्टिकल वेल्डिंग की जा रही है. इसमें ये नीचे से आके हम इन 2 वर्क पीसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं. जैसे हमने बड़े स्टील स्टोरेज, वो ऑयल स्टोरेज टैंक का हमने छत बनाया, तो छत की जो प्लेट रहती है उनको ऊपर से भी ज्वाइन करना पड़ता है और नीचे की तरफ से आके भी ज्वाइन करना पड़ता है. तो जब अपन नीचे की तरफ से आके उनको ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाती है ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन. और जब छत के ऊपर जाके अपन उसको रूफ को, सीट को वेल्ड करते हैं तो कहलाती फ्लैट या डाउन हैंड वेल्डिंग पोजीशन. ठीक है, अब आती है टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस.
तो इसमें जो सबसे पहली प्रोसेस आई है वो है प्लास्टिक वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। मतलब दिस इज द नेम ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस इन विच वर्कपीस टू बी ज्वाइंट रिमेन्स स्टेशनरी। कितनी वेल्डिंग पोजीशन है? ये यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? 4 सर। हाँ, तो अब है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस। वेल्डिंग प्रोसेस, वॉट एवर वेल्डिंग प्रोसेस ही डिस्क्राइब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, प्लास्टिक एंड फ्यूजन। ठीक है ना? प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस वो वेल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें अलग से हीट सोर्स अपन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दो वर्कपीस जिनको अपन को ज्वाइन करना होता है उनको टाइटली हेल्ड किया जाता है और एक दूसरे के अगेंस्ट उनको मूव कराते हैं। ठीक है ना? या हम उल्टा बोलें, एक तरीका होता है, या हम उल्टा बोल सकते हैं कि वर्कपीस सॉलिड स्टेट में होते हैं, उनकी लोकलाइज मेल्टिंग नहीं की जाती है, इसके बाद भी वो वेल्डिंग वहाँ पे पॉसिबल हो जाती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस विच आई वुड लाइक टू नेम हियर। वन इज नोन एज फ्रिक्शन वेल्डिंग, अनदर इज नोन एज स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग ओनली। ठीक है ना? फ्रिक्शन वेल्डिंग वो होती है जिसमें कि दो वर्कपीस को अपन एक दूसरे के अगेंस्ट टाइटली होल्ड करें। जैसे हमारे पास दो मेटल की सीट्स हैं, डिस्क हैं, हमने एक दूसरे हाथों में दोनों को पकड़ के रखा है, एक सीट को अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे को उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एक दूसरे से टाइटली होल्ड करती हुई। तो उनकी जो इंटरनल सर्फेसिस होंगी उसमें फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उनके जो कॉन्स्टिट्यूंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसफ़र होगा एक सीट से दूसरे सीट की तरफ, और जब अपन वो प्रोसेस रोकेंगे तो सरफेस अलाइंग हो जाएगी ठंडे होते वक्त। तो इस केस में एक हल्का सा जॉइंट वहाँ पर तैयार हो जाता है, और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रिक्शन वेल्डिंग। दूसरी यहाँ पे जो प्रोसेस आती है विच इज़ नोन एज फोर्ज वेल्डिंग और स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग। तो स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग में क्या होता है, ब्लेज ब्लैक स्मिथ की जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है वो स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग है, जिसमें ब्लैक स्मिथ या लोहार क्या करता है, दो मेटेलिक पीसेस को अलग अलग गर्म करके रेड हॉट करता है, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर रखता है और हैमरिंग करके उनको आपस में ज्वाइन करा देता है। ये जो प्रोसेस है दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच टू पीसेस आर ज्वाइंड इन सॉलिड स्टेट, और इसको बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। तो इसके कुल दो टाइप हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग है, फोर्ज वेल्डिंग और स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग। कोई दिक्कत तो नहीं प्लास्टिक वेल्डिंग में? नो सर। चलो, अब दूसरी आती है फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है ना? तो अब इसमें नाम भले नॉन प्रेशर लिखा हो, लेकिन यहाँ पे एक वेल्डिंग प्रोसेस ऐसी है जिसमें कि प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसका नाम होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस वो वेल्डिंग प्रोसेसेस होती हैं, उनका ग्रुप होता है जहाँ पे मटेरियल जिनके पार्ट को अपन को ज्वाइन करना है उनको अपन हीट करते हैं किसी हीट सोर्स के द्वारा। दैट कैन बी गैस फ्लेम, दैट कैन बी आर्क, दैट कैन बी रजिस्टिव हीटिंग। तीन इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पे माने गए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो कहलाती हैं गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। In arc welding, the source of heating is electric arc produced between two parts, two conductors of electricity. गैस वेल्डिंग वो वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें कि फ्यूल गैस की कंबस्शन के द्वारा जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसको अपन डायरेक्ट करते हैं वर्कपीस की तरफ, लोकलाइज मेल्टिंग होती है, बाद में वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इन विच the interfaces of the two parts to be joined are localized melted by the application of resistive heating। मतलब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, वर्कपीस के इलेक्ट्रोड्स के बीच में दो वर्कपीस को टाइटली हेल्ड किया जाएगा, बहुत हाई एम्पियरेज लो वोल्टेज करंट बहुत कम समय के लिए सप्लाई किया जाएगा। तो जहाँ जहाँ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नीचे वर्कपीस कॉन्टैक्ट में होंगे वहाँ पे लोकलाइज मेल्टिंग होगी और फिर आखिरी में जाके वहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगी। तो प्रिंसिपल होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, रेजिस्टिव हीटिंग का। ठीक है ना? तो तीन वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक, अपन आगे चलते हैं। आर्क वेल्डिंग में आपको ये फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फिगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंने इस फिगर में क्या दिखाया गया, वी हैव सीन एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और उस इलेक्ट्रोड के
सब तरफ यहाँ पे क्या दिया गया है, ये कोटिंग दी गई है। ये मटेरियल है जिसका कंपोजिशन बेस मेटल जैसा होगा और इसके चारों तरफ यहाँ पे कोटिंग की गई है। कोटिंग में क्या होता है, वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क की हीट की वजह से वो मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने के साथ ही वो जो मोल्टन मेटल उसके साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। ऑक्साइड यहाँ पे जो बनता है वो बहुत लो डेंसिटी का होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्लैग, और लो डेंसिटी होने की वजह से वो मोल्टन मेटल के टॉप में फ्लोट होता रहता है। जैसे जैसे अपन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रोड को पीछे करते हैं, तो उस केस में जो स्लैग ऊपर की तरफ आके डिपॉजिट हो जाता है, वो कवर करता है मोल्टन मेटल पूल को और एटमॉस्फेरिक गैसेस को मोल्टन मेटल पूल के साथ मिक्स नहीं होने देता। मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। इस प्रकार से गैस की वेल्डिंग जॉइंट को वहाँ पर सील्ड करता है। ठीक है ना। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब इसमें दो यहाँ पर तीन ना चार नाम आपको दिखेंगे, बेसिकली तीन मान लो आप, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और SMAW। तो नॉर्मली वर्कशॉप में जो वेल्डिंग की जाती है वो SMAW ही है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। सील्डिंग क्यों वर्ड इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो कोटिंग होती है, फ्लक्स कोटिंग जिसको अपन बोलते हैं, पर जब वो आर्क की हीट के दौरान बर्न होती है वहाँ पे, तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करती है। वो गैस मोल्टन मेटल पूल के चारों तरफ फैली रहती है। इस वजह से एटमॉस्फेरिक गैसेस वहाँ पे मोल्टन मेटल पूल के साथ आके मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए इसका नाम दिया गया सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है ना। एक लिखी है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या GMAW, दिस इज आल्सो नोन एज MIG, मेटल इनर्ट गैस सील्डेड आर्क वेल्डिंग। ठीक है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है और वो उसका कंपोजिशन कैसा होता है, कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज इन GMAW और MIG इज सेम एज द बेस मेटल। दूसरी प्रोसेस आर्क वेल्डिंग में लिखी गई है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, या उसको बोलते हैं TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इस केस में इसमें सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन and it is not consumable. Whereas in case of gas metal arc welding or GMAW, electrode is made up of material whose composition is similar to base metal. Base metal जैसा composition होता है and it is consumable. वो consume होता रहता है, इसलिए continuously इसको supply करना पड़ता है। ठीक है। और चूंकि इसमें मेटल वर्क इस वर्ड इस शब्द में लगा हुआ है, तो अभी मानना यहाँ पे, जैसा मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहा है वो कैसा है, कंज्यूमेबल टाइप है। इन SMAW कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। ठीक है ना। एंड कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग हैज टू परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नंबर वन, electrodes are used for generation of the arc, and number two, it supplies filler material also. तो जिस आर्क वेल्डिंग के आगे मेटल वर्ड लगा हुआ है, आप ये इमेजिन कर लेना, मान लेना कि उस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है, मतलब वो दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट इज जनरेटिंग आर्क आल्सो एंड इट इज प्रोवाइडिंग फिलर मटेरियल। इस केस में भी सेम चीज़ है इन केस ऑफ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और GMAW। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है, ठीक है, इट इज सप्लाइंग फिलर मटेरियल। जबकि GTAW और टिक का जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, और वो किसका बना हुआ है, यहाँ पे वर्ड लगा हुआ टंगस्टन, तो टंगस्टन का यहाँ पे बना रहता है। कोई डाउट यहाँ पे तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई डाउट नहीं तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस लिखी गई है गैस वेल्डिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। ठीक है ना। जब भी अपन हाइड्रोकार्बन गैसेस को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ कुछ अमाउंट मतलब हीट भी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। जैसे CaC2 लगाई तो CaOH बन गया, ये मीथेन है, सॉरी एसिटिलीन है, C2H2 एसिटिलीन, ये रिएक्ट कर रही है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, CO2 प्लस H2 यहाँ पे बना रही है। तो ऐसी फर्दर कुछ ऑक्सीजन माने ये केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। अल्टीमेटली जो गैस रहती है वो CO2 और H2O में डिसइंटीग्रेट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड रहता है, सॉरी,
जो गैस वेल्डिंग होती है इसमें हम फ्यूल गैस को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होती है। दैट फ्लेम इज डायरेक्ट टुवर्ड द वर्कपीस टू बी वेल्डेड, वो लोकलाइज मेल्ट होता है। इसके बाद चाहें तो हम अलग से वहाँ पर फिलर मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड, ठीक है। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ gas flames produced in this gas welding. One is known as neutral flame, where C2H2 and O2 are equal or in equal amount. दूसरी होती है reducing flame, जिसमें C2H2 ज़्यादा होता है in comparison to oxygen. तीसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, C2H2 कम होती है। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए कि किस फ्लेम को अपन न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे, किसको अपन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलेंगे और किसको अपन रेड्यूसिंग फ्लेम बोलेंगे। When I taught you in the class, then I told you the basic differences between these three types of flames. इसमें जो इनर वाइट कौन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम इट इज ऑलमोस्ट 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन केस ऑफ रिड्यूसिंग फ्लेम इट रिड्यूसेस बाय 200, तो ये लगभग अपन मान लेते हैं 2900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनर वाइट कोन का जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 3300 डिग्री, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपनी इस प्रोसेस में न्यूट्रल फ्लेम में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस फ्लेम में जो कोन है, इनर वाइट कोन है, उसका टेम्परेचर होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। रिड्यूसिंग फ्लेम में उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कम होकर 2900 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वो टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसके कंपेरिजन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड के 3300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये आपको रटना पड़ेगा। ये तो सेटअप दिखाया गया है गैस वेल्डिंग का सेटअप कैसा होता है। तीसरी प्रोसेस आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है दैट इज द रेजिस्टिव हीटिंग। और रेजिस्टिंग हीटिंग में जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट हीट कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट और होना चाहिए, तो आप उस कांस्टेंट पर नाम ऐड कर लेना, जो के एल कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से देखते हैं कि एम्पेरेज यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोकलाइज मेल्टिंग होगी वो डिपेंडेंट होगी आर पे, रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट्स टू बी ज्वाइंट। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया थे, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, जो कि जहाँ पे दो वर्कपीस आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आर होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रकार की रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस हैं: स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसाइड वेल्डिंग एंड फ्लैश वेल्डिंग। अब मैं आपको डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, बट इस प्रकार की यहाँ पर होती है, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट the welding processes which we have studied in unit number 2. Now if you have any question, then you can unmute yourself and ask your queries. जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया है। फ्यूजन, हेलो हाँ बोलो बेटे। सर फ्यूजन वेल्डिंग सर थोड़ा सा बता दीजिए तो। फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब है कि जहाँ पे अपन मेटल को मेल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हमें जैसे आर्क वेल्डिंग का केस है, आर्क वेल्डिंग में हमने दो वर्क पीस हैं, चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर, उनको हमें ज्वाइन करना है तो हल्का सा उनको मेल्ट करना पड़ता है। तो हम आर्क जनरेट कराते हैं उन वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में। तो जो आर्क होता है उसकी वजह से वर्क पीसेस की लोकलाइज मेल्टिंग होती है, वो फ्यूज हो जाता है, मतलब वो क्या करता है, पिघल जाता है। वहाँ पे पिघलने के बाद दोनों वर्क पीस आपस में प्रॉपरली मिक्स होते हैं, तो इसको इस वर्ड को बोला गया है फ्यूजन। तो आर्क वेल्डिंग हो, गैस वेल्डिंग हो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो, इन तीनों वेल्डिंग प्रोसेसेस में जो वर्कपीस हम आते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम वो कहीं न किसी रूप में वेल्ड कराते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती हैं फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। और दूसरी प्रकार की वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट में मेटल की ज्वाइनिंग हो जाती है, अपन को पिघलाना नहीं पड़ता है, वो कहलाती है प्लास्टिक वेल्डिंग। और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी उसको ऊपर नाम दे सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, प्लास्टिक वेल्डिंग में दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, एक आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग और दूसरा आता है दूसरे को अपन बोलते हैं स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग। और बाकी फ्यूजन वेल्डिंग में सारे नाम है अपने: इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग।
और कोई डाउट? नो सर। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन मीटिंग क्लोज करते हैं। अटेंडेंस सब लोग आप लोग डाल देना चैट बॉक्स में, 1 मिनट के अंदर मैं इसको यस क्लोज सर कर डाल दूंगा दें। मीटिंग। यस सर। ओके, क्लोज करता हूँ फिर मीटिंग आएगी। यस ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।